Hello, good morning, all of you. I hope you all are fine. Uh, Day before yesterday, I sent a link on WhatsApp regarding the Zoom meeting, but a couple of students attended the meeting. Then I decided to cancel the meeting because of lack of students, and then I think that why should not record a video and send to you so that you can watch this video and learn something out of it. uh, I have prepared a slide, and the topic is exercise and immunity. As you all know that exercise is a important part of life, and it as well as improve your immunity system also. So the presentation of my outline is exercise, immunity system, exercise and immunity system relationship, and at the end I will focus on some facts on endurance training. What is exercise? Exercise is systematic physical activity. Further, it is divided into aerobic and anaerobic exercises. Aerobic exercise means the exercise in the presence of oxygen, and anaerobic exercise means in the absence of oxygen. Like if someone doing 100-meter sprint, it is a example of anaerobic exercise. If some athlete go for marathon running, it is an example of aerobic exercise. So there are two type of exercise: aerobic and anaerobic. Exercise depend upon the further training load. Training load means that what kind of stress in the form of exercise given to the athlete or individual, so that the adaptation take place in respect to that load. Training load is further divided into intensity and volume. Intensity means speed of rate of work, and volume means a total amount of work. Intensity further divided into intensity and density, and volume is further divided into duration and frequency. In intensity and density means intensity is number of time you do particular activity, and density means rest between the activity. Volume means how much work you have done, and it divided into duration and frequency. Duration means how long you do it particular work, and frequency means how repeatedly, how frequently you do particular work or exercise. And in other slide, the major effect of exercise on innate immune system are complex and depend upon several factor. ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों पे, और जो हमारा इफ़ेक्ट है एक्सरसाइज का वो भी डिपेंड करता है कई सारी बातों पे, कई सारे फैक्टर्स पे। जैसे टाइप ऑफ एक्सरसाइज, हम किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या वो एक्सरसाइज एरोबिक है, क्या वो एक्सरसाइज इनएरोबिक है, वो डिपेंड करता है।
देन फर्दर मैंने बताया आपको किस तरह से इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज भी इफ़ेक्ट डालती है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह की एक्सरसाइज से इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और वीक भी होता है। यह मैं आपको एट द लास्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अनदर पॉइंट इज़ द टाइमिंग ऑफ मेजरमेंट इन रिलेशन टू द एक्सरसाइज सेशन। वो सेम है कि जो हमारा एक्सरसाइज सेशन है वो उसका टाइमिंग क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है इन रिलेशन टू एक्सरसाइज सेशन। इम्यून सिस्टम जो है वो कई सारी बातों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। उसमें से कुछ फैक्टर्स हैं जैसे एज, जेंडर, मेल या फीमेल, ईटिंग हैबिट्स, मेडिकल स्टेटस, ट्रेनिंग एंड फिटनेस लेवल। इसमें जो पहले 3 फैक्टर्स है वो कंट्रोल्ड हैं, मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसको हम कंट्रोल, जैसे एज है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जेंडर है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पहले 2 फैक्टर जो हैं वो अनकंट्रोलेबल है, जो हमारे आउट ऑफ रीच है। बाकी के जो फैक्टर्स है लाइक ईटिंग हैबिट्स, मेडिकल स्टेटस, ट्रेनिंग एंड फिटनेस लेवल, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी मेडिकल स्टेटस को अच्छा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट एंड अदर डूइंग पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस। ट्रेनिंग ट्रेनिंग की हेल्प से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, फिटनेस लेवल, हमारा फिटनेस लेवल कैसा है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। फर्दर जो इम्यून सिस्टम है उसके बारे में बताना चाहूँगा। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो इनबॉर्न होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जिसको हम एक्वायर्ड करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक रिएक्शन एंड इम्यूनोलॉजी मेमोरी टू ईच इन्फेक्शन एजेंट्स। The innate immune system consists of anatomic and physiological barriers like skin, mucous membrane, body temperature, your low pH level, special chemical mediators such as complement and interferon, and specialized cells, natural killer cells and phagocytes including neutrophils, monocytes and macrophages. When the innate immune system fails to effectively combat an invading pathogens, the body produces a learned immune responses. तो कहने का मतलब है कि जो हमारा इन्नेट या हमारा इनबोर्न नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसमें कई सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी पैथोजन से, वायरस से, बैक्टीरिया से। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फिज़िकल बैरियर्स होते हैं और केमिकल बैरियर्स है या वाइट ब्लड सेल्स है। जनरली क्या होता है कि जब हमारी बॉडी बॉडी में किसी भी तरह की इंजरी होती है या फिर हमारी बॉडी में किसी तरह का भी इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फेक्शन होता है, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो वाइट ब्लड सेल्स है। वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें बचाते हैं इन सारी चीज़ों से, जिसमें से मोनोसाइट्स है, माइक्रोफेजेस है, ग्रैनुलेट्स है और नेचुरल किलिंग सेल्स है। ठीक है, तो मैं अब एक एक करके थोड़ा सा आपको ये वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड नॉन ग्रैनुलोसाइट्स, जिसे हम ए ग्रैनुलोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं। ठीक है ना, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इसमें जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसको हम मल्टी न्यूक्लियस लोब्स भी कहते हैं। इसमें मल्टी न्यूक्लियस लोब्स होते हैं। इओसिनोफिल्स में बाय लोब्स होते हैं और जो बेसोफिल्स में होते हैं उसमें भी मोनो लोब्स होते हैं, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, इन सब न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स को हम पीएमएस भी कहते हैं, जैसे पॉलीमार्फो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर।
पॉली मतलब होता है मैनी, मॉर्फो मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं जो न्यूट्रोफिल्स होती है। न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में 40 to 75% हमारे ब्लड में ये इसकी प्रेजेंस होती है। 40 to 75% का मतलब है कि जैसे हम अगर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड अगर हम मेज़र करते हैं तो उसमें उस सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड में 40 to 75% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अगर वही न्यूट्रोफिल्स 40% से कम होगा तो उसको हम न्यूट्रोफिनिया कहेंगे, और वही अगर मोर देन 75% होगा तो हम उसको न्यूट्रोफिलिया कहेंगे। पॉइंट मेरा ये है कि जो न्यूट्रोफिल्स जो वाइट ब्लड सेल में होता है वो हमारे किस काम में कब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है किस तरह की टिश्यू इंजरी या इन्फेक्शन, या फिर हमारी बॉडी में जब कोई पस पड़ जाता है तो ये रिलीज़ होता है मैक्सिमम परसेंटेज में। तो ये हमारी बॉडी को उस वक्त इस इन्फ्लेमेशन से, इस पस जो बॉडी में पड़ जाता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इट इज़ रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो, ये बोन मैरो से रिलीज़ होता है। ऐसी जो ईओसोफिल्स होता है वो हमारे पूरे ब्लड काउंट में बहुत कम मात्रा होती है, ये 1 से 4% होता है सिर्फ। इट इज़ रेंज 1 to 4% in total blood. The function of eosinophils is to protect against the parasite infection. जो पैरासाइट इन्फेक्शन है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा बेसोफिल्स है उसकी मात्रा एसोफिल्स से भी बहुत कम होती है, ये 0 to 2% होता है। और ये हमारी बॉडी में तब इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है जब हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है। एलर्जिक रिएक्शन जब भी होता है तो बेसोफिल्स, ठीक है ना, बहुत सही ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से। ये अभी हमारी बॉडी से बोन मैरो से ही रिलीज़ होता है, वहीं से बनता है। फिर जो हमारा नॉन ग्रेनुलोसाइट्स है जिसको हम एक ग्रेनुलोसाइट भी कहते हैं, उसमें उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इट्स अ काइंड ऑफ अनदर काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल, ठीक है। मोनोसाइट्स का जो परसेंटेज है वो 2 to 10% है हमारी बॉडी में इन कंपेयर टू इन टोटल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है ना, 2 to 10% होता है। अगर मोनोसाइट्स हमारा 10% से ज़्यादा होता है तो उसको मोनोसाइटोसिस कहते हैं, है ना। तो ये जो मोनोसाइटोसिस का मीन्स टू से दैट इफ़ द मोनोसाइटिस मोर देन द 10%। इसका जो फंक्शन है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में होता है तब ये मोनोसाइटिस प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में। अब ये क्रॉनिक इन्फेक्शन का एग्जांपल अगर हम ले तो ये जैसे हमारी बॉडी में टीबी हो जाता है, ट्यूबरोक्लोसिस। तो इन केस ऑफ ट्यूबरोक्लोसिस हमारी बॉडी में मोनोसाइटिस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और जो अनदर है लिम्फोसाइटिस, ये हमारी बॉडी में 50 to 40% होता है इन ब्लड। लिम्फोसाइटिस का अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइटिस जो सेल है उसमें सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन भी है कि अगर विच न्यूक्लियस फाउंड इन द लार्जर इन द वाइट ब्लड सेल दैट इज मोनोसाइटिस, लिम्फोसाइटिस, क्लियर। तो मोर देन 40% लिम्फोसाइटोसिस होता है। और जो द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइटिस सीन इन वायरल इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक इन्फेक्शंस, जो भी वायरल इन्फेक्शन जैसे वायरल हमें फीवर हो जाता है या वायरस इन्फेक्शन हो जाता है या क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस केस में लिम्फोसाइटिस ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो पॉइंट इज़ जो ग्रेनुलोसाइटिस है वो एक्चुअली प्रोड्यूस कहाँ होता है। तो जो ग्रेनुलोसाइटिस है वो प्रोड्यूस होता है हमारे बोन मैरो में, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेनुलोपायोसिस, उसको हम कहते हैं ग्रेनुलोपायोसिस। तो ये कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, हमारी बॉडी में रेसिस्टेंस पावर को बढ़ाते हैं, और ये हमें इन्फेक्शन, वायरल, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमें मदद करते हैं। जिसमें से जो मेन ब्लड सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं, ईओसिनोफिल्स हैं,
बेसोफिल्स हैं जो ग्रेनुलाइटस में आते हैं, और नॉन ग्रेनुलाइटस साइटस में जो आते हैं वो मोनोसाइटस और लिम्फोसाइटस आते हैं, है ना। ये स्लाइड है, इसमें परसेंटेज दिया बताया गया कि ल्यूकोसाइटस ऑल्सो नोन एज अ वाइट ब्लड सेल्स from a component of the blood. They are mainly produced in the bone marrow and help to defend the body against infection, disease and foreign material as a part of immune system. There is normally between 4 into 109 and 11 into 109, मतलब ये 4000 से more than 10,000 होते हैं वाइट ब्लड सेल्स अ लीटर ऑफ हेल्दी अडल्ट ब्लड। जो अडल्ट हेल्दी ब्लड होता है, मतलब जो नॉर्मल आदमी है, उसमें 4,000 से ये 10,000 से ऊपर तक होते हैं। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी रेंज है। ल्यूकोसाइटस circulate throughout the body, seek out their targets. In this way, the immune system work in a coordinated manner to monitor the body for substances that might cause problems. ये मैंने आपको बताया ग्रैनुल ल्यूकोसाइटस क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है, इनका अलग इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि किस तरह से न्यूट्रोफिल्स तब काम करता है जब हमारी बॉडी में कोई भी पस पड़ जाता है या फिर हमारी बॉडी में कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है। बेसोफिल्स का रोल तब होता है जब हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो ये सेल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में। और इसके बाद जो लास्ट वन है वो इओसिनोफिल्स है। तो इओसिनोफिल्स एट द टाइम ऑफ पैरासाइट इन्फेक्शन। पैरासाइट्स इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जब हम कोई भी रो मीट या अनकुक्ड मीट हम जब खाते हैं, तो उससे वो जब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है तो उससे पैरासाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दैट टाइम इओसिनोफिल्स प्रोड्यूस वाइट ब्लड सेल्स, इट्स अ काइंड ऑफ अ वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। There are two basic type of leukocytes, the phagocytes which are cells that chew up invading organism and the lymphocytes which allow the body to remember the recognized previous invader। इसका मतलब ये है कि हमारी एक्चुअली फेगोसाइटस जो होता है वो कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस होता है जो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी में, उसको एक तरह से रिकग्नाइज करता है, एडहेरेंस करता है, फिर उसको उसके बाद एनगल्फमेंट करता है, उसके बाद उसको इंट्रासेलुलर एक्टिविटी में उसको वो किल कर देता है। तो ये फेगोसाइटस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना, जो हमें पता होना चाहिए। ये एक टेबल है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ल्यूकोसाइटस की जो रेंज है वो 4,500 से 11,000 तक होनी चाहिए, मैंने बताया आपको। न्यूट्रोफिल्स की 4,000 टू 7,000, लिम्फोसाइटिस की 2,500 से 5,000 होना चाहिए, मोनोसाइटस 100 टू 1,000, इसिनोफिल्स की 0 टू 500 एंड बेसोफिल जो बहुत कम मात्रा में बताया है इसका 0 टू 100% होना चाहिए। ये क्या है कि नॉर्मल वैल्यूज़ है, ठीक है ना, ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स लेवल की हैं, जो हमें ये डिनोट करता है कि जो यू आर हेल्दी, यू आर फिट, ठीक है ना। अगर इनमें बहुत ज़्यादा कमी आती है तो फिर वो हमारी इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। अनदर इस स्लाइड में बताया गया था मेन सेल इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड अमीनो आर द लिम्फोसाइटस। एक्चुअली क्या होता है कि एक्वायर्ड अमीनो सिस्टम का मतलब होता है कि किस तरह से आप अपनी ईटिंग हैबिट से या एक्सरसाइज से, ट्रेनिंग से आप अपने एक्वायर्ड अमीनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट वाइट ब्लड सेल्स है वो लिम्फोसाइटस है। इसको दो भागों में बाद में कैटेगराइज किया गया है कि डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, बी लिम्फोसाइटस और टी लिम्फोसाइटेड। अगर इसको स्लाइड को हम थोड़ा इनलार्ज करेंगे तो इसमें बताया गया कि बोथ आर कैपेबल secreting the large variety of specialized molecules antibodies to regulate the immune response,
तो देर इज़ अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइटिस एंड टी लिम्फोसाइटिस। इसको टी सेल और बी सेल भी कहते हैं। इनका एक डिफरेंट रोल है बॉडी के अंदर। और यू कैन इम्प्रूव योर लिम्फोसाइटिस cells through the training, through the proper diet and exercise and all. Clear? Sometime it is also known as a natural killer. Natural killers का mean है ये they automatically kill the foreign substances in the body. Now the point is कि effect of exercise on immune system. Immune system का क्या effect पड़ता है, एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इम्यून सिस्टम के ऊपर। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि एक्सरसाइज का बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर। इफ़ यू डूइंग कंटिन्यूसली एक्सरसाइज 5 इन अ वीक, दैट इम्प्रूव्स योर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑल्सो। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द इम्यून सिस्टम, इन रिलेशन टू द इम्यून सिस्टम, एक थ्योरी है जिसको हम जे कर्व रिस्पॉन्स कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी मॉडरेट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बशर्ते अगर हम बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो उसका अपोजिट इफ़ेक्ट पड़ेगा बॉडी के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि जब हम मॉडरेट टू हाई ट्रेनिंग करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव पड़ता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। अगर हम हाई टू वेरी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट नेगेटिव हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। ये जो डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, इसमें ये बताया गया है कि ये जो जे कर्व रिस्पॉन्स है, ठीक है ना, ये एक तरह का ओपन विंडो है। ओपन विंडो का मतलब है कि ओपन विंडो थ्योरी एक थ्योरी है जिससे ये पता चलता है कि अगर हम 1 घंटे तक बहुत ही विगरस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम कंटिन्यू रनिंग करते हैं या फिर हम कंटिन्यू साइकिलिंग करते हैं, जिसमें इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। इंटेंसिटी का मतलब है जिसमें कि स्पीड ऑफ वर्क बहुत हाई है, उसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं 3 से 72 घंटे के बीच में। ये 3 से जो 72 घंटे हैं, इसको हम ओपन विंडो कहते हैं। एक्सरसाइज में इसको ओपन विंडो नाम दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कॉन्स्टेंटली अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, तो उसमें क्या है कि हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो वो वीक होने के कारण उसको में ये डिनोट किया गया है कि जो ओपन विंडो है वो खुल जाती है। विंडो खुल गई मतलब कोई ना कोई उस विंडो से अंदर आएगा। तो यहाँ विंडो का मतलब है कि कोई ना कोई पैरासाइट या कोई ना कोई इम्यून सिस्टम हमारा जब वीक होगा तो हमें कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन हमें अटैक कर सकता है। तो इसलिए इसलिए इसमें रिकमेंड किया गया है कि आपको बहुत स्लो से मॉडरेट से हाई लेवल इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। आपको बहुत ज़्यादा तक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो एक्सरसाइज का पैटर्न है वो बहुत मॉडरेट से हाई होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें एकदम हाई इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए। मॉडरेट से हाई का मतलब है कि ग्रेजुअली आपको अपनी जो फिटनेस ट्रेनिंग है वो इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये इसमें इफ़ेक्ट है। इसकी जो समरी है उसमें यही बताया गया है कि किस तरह से हमारा जो सिस्टम है, इफ़ेक्ट है एक्सरसाइज का, वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर पड़ता है। कुछ पॉइंट है जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है, कि जिसमें एक्सरसाइज has anti-inflammatory effect, which means that moderate amount of exercise may enhance immune function above sedentary level. sedentary level का मतलब होता है कि नॉर्मल लेवल जो होता है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सरसाइज है उसका हमेशा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। मतलब ये अच्छा इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर कि जब भी हमारी बॉडी में कोई टूट फूट हो जाती है या कोई हमारी बॉडी में कोई किस तरह का वीकनेस होती है, तो विथ ही हाई मॉडरेट एक्सरसाइज हम उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद रिड्यूस रेस्टिंग सी क्रिएटिव प्रोटीन लेवल्स। The physical activity is associated with reduced resting
सी क्रिएटिव प्रोटीन लेवल, हमारा जो सी क्रिएटिव प्रोटीन लेवल है वो रिड्यूस होता है बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। हैवी फिजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस अ रैपिड ट्रांजिएंट इंक्रीजेज इन साइटोकाइन प्रोडक्शन एंड entails increase in both pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines। साइटोकिन्स भी एक तरह का सेल है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, तो वो बहुत तेज़ी से वो प्रोड्यूस होता है जब हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जिसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट पड़ता है। फिजिकल एक्सरसाइज इफेक्ट द जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इन ल्यूकोसाइटस। ये आगे के पॉइंट पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो, देयर इज़ नो डाउट दैट साइंस हैज़ ऑलरेडी प्रूव दैट द इम्यून सिस्टम इज़ one can improve their immune system with the help of the exercise, but how much you have to do exercise, it depend upon your capacity, or also it depend upon your other factors. So science always recommend that moderate to high intensity exercise are recommended rather than the high intensity exercise। ठीक, आप इस वॉइस रिकॉर्ड मैसेज से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी सिस्टम के ऊपर, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आप मैं इसको शेयर कर दूंगा, प्लीज़ आप इसको ज़रूर सुनिए, है ना। थैंक यू सो मच एंड स्टे हेल्दी एंड डू फिज़िकल एक्टिविटी डेली। थैंक यू सो मच।